So in the yesterday's class we were studying about the 5 steps of production of high yielding variety HYV. First was germplasm collection, second was the hybridization between the selective plant, that is जो parent अपन select करा. Third is evaluation of the and selection of the parent. Third is hybridization, and fourth is selection and testing of the superior, and the fifth one is very important. फिफ्थ वन में क्या है, पहले तो हमने फोर्थ स्टेप में व्हाट वी टेस्टेड ओनली इन द फार्म कंडीशंस, इन द लेबोरेटरी कंडीशन, है ना. देयर द कंडीशंस वर ऑल गुड, द सॉइल वाज गुड, द pesticide were there, the fertilizers were there, water, irrigation and all, conditions were good and all. Now, before recommending it for the release, the test has to be done in the different agronomic conditions. So now we will give it to the farmers. Vaccination के test हो रहे हैं ना आजकल. Vaccines are also done in the same manner. The first vaccines are produced in the laboratory. First they are tested on the animals, ठीक है, विच विल स्टडी इन चैप्टर 12, है ना, कैसे वो टेस्ट करते हैं. एंड देन वो टेस्ट हो जाएंगे एवरीथिंग, देन दे आर स्टार्टेड टेस्टिंग ऑन द पीपल. तो फर्स्ट दे विल टेस्ट ऑन द 10 पीपल वॉलंटियर्स. उसके बाद द टेस्ट, इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, कोई मरा नहीं. आज वैक्सीनेशन में एक मर गया है. वन ऑफ द पर्सन इज डाइड ऑन द टेस्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन, तो उसका तो फेल हो गया. Now it will be difficult for them. They will have to reschedule it, the dose and all, and they will have to find out what is the actual reason of death, whether it was the vaccine or it was some other reason and all. वो सब कुछ करना पड़ेगा. तो ऐसे ही यहाँ पे तो, और वहाँ पे वो कंट्रोल कंडीशन पे ह्यूमन पे कर रहे थे. नाउ वी आर डूइंग इट इन द कंट्रोल कंडीशन इन द this thing in the farm houses, and then we will give it to the people, farmers. They will have their different agroclimatic conditions. कुछ हम हिमाचल में उगाएंगे, कुछ हम पंजाब में उगाएंगे, कुछ हम हरियाणा में उगाएंगे, कुछ राजस्थान में. Some seeds are given to the Gujaratis, some are given to the Saurashtrians, some are given to the Andhras, some are given to Karnataka. Different conditions. So the conditions of the agriculture is best in Punjab, little bit good in Haryana, all the more little less good in some part of the Rajasthan. And if you go just below, that is Gujarat, Maharashtra and Karnataka and all, the condition goes poorer and poorer, because their water is a very big problem and other problems are there. Okay? And then Bihar is a good place, UP has got a lot of fertile land, so those conditions are better. तो इस हिसाब से हम उनको टेस्ट करेंगे इन द डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये जो लाइन लिखी है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन, जहाँ पे वो ग्रो करने के लिए. एंड द रिजल्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द लोकल वेराइटी. वो पहले जो बोल रहे थे उसके कंपेरिजन में हाउ गुड इट इज़, whether the productivity is good, whether the resistance against the climatic conditions are good, resistance against the saline water is good, poor water availability or water logging and all, they are not creating a very big problem, and infection is not common to them and all. If all the conditions are better and the result is coming uniform for next 3 years, then the recommendation is given कि ठीक है साहब, अब आप इसको बेच सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज. नाउ मैं यही आपको बता रहा था कल, जब मैं जो है अपनी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी, अचानक से टाइम लिमिट बढ़ गया था. तो देखिए, द एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया GDP एंड 62% ऑफ पॉपुलेशन. तो दिस लाइन आई वॉज एक्सप्लेनिंग, अभी लाइट चली गई थी. 62% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट मीन कि दे ऑल आर फार्मर्स. They may be engaged in some way or other with the handling of the crop. वो farmers हो सकते हैं, वो सीड सेलर्स हो सकते हैं, वो फर्टिलाइजर सेलिंग करने वाले होंगे, या उनकी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होंगे, या वो फूड स्टोरेज के काम कर रहे होंगे, या फिर कुछ और तरह की चीज़. समहाउ दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. सो उनको सबको, इवन द कैटल एंड अदर जो चीज़ें हैं, उनको भी हम जो है एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे. ठीक है. सो फिर यहाँ पे आगे लिखा है दैट इज एज ओनली लिमिटेड लैंड इज फिट फॉर द कल्टिवेशन. इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड एज पर unit area from the existing farmland, and the development of several high yielding varieties of the wheat and the rice in mid 60s
as a result of the various plant breeding technique led to the dramatic increase in the food production. तो these were led to the green revolution. तो आप यहाँ पे इन वेराइटीज़ के नाम याद करेंगे खुद से, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आप इसको, ये सब आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो इस साल के एग्ज़ाम में तो हम के आएंगे नहीं, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी डोंट नो वेदर दे विल बी कमिंग और नॉट कमिंग एंड ऑल, एंड कॉम्पिटिशन तो यू मे हैव टू गिव इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, सो यू हैव टू स्टडी. अब इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू स्टडी दिस ईयर और वेदर यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट ईयर. तो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के नाम दे रखे हैं, जैसे सोनालिका दे रखा है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1967, ड्रामेटिकली चेंज्ड द वीट प्रोडक्शन. ठीक है, एंड आप ये मान के चलिए कि बिफोर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्या कहते हैं सोनालिका एंड सोना कल्याण एंड ऑल, ये जब नहीं आए इससे पहले वी वर जस्ट इम्पोर्टिंग वीट, वी वर इम्पोर्टिंग राइस फ्रॉम दोज स्मॉल कंट्री लाइक इंडोनेशिया एंड ताइवान एंड ऑल. ठीक है, अब देखिए वीट एंड राइस के बारे में यहाँ लिखा है, देखिए द पीरियड ऑफ 1960 to 2000 द वीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन, अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम इंक्रीज. ठीक है, इन 40 years time. While the rice production is increased somewhere about 2.5 times, that is 35 million tons to 89.5 million tons. This is due to the development of semi-dwarf varieties of the wheat and rice. पहले हमारे क्या वीट बड़े राइस भी, बड़ा राइस होता तो क्या होता है, जोर से एक हवा चलती है, बिकॉज द स्टॉक ऑफ द राइस इज वेरी थिन, हाफ ऑफ दिस चॉक वेरी थिन. जो स्ट्रॉ होती है ना अपन जो पीने के काम में लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, इतना ही होता है द थिकनेस ऑफ द स्टेम ऑफ द राइस प्लांट पैडी. एंड जोड़ की एक हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, सारे पेड़ नीचे गिरे हुए मिलते हैं, एंड देन दे कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, मोर एवर a lot of nutrition which they are producing is going into the increasing of height. जबकि कम हाइट में अगर फ्लावर आ जाएंगे तो क्या होगा, most of the nutrient will go into their seeds. ठीक है, so that is the advantage of semi dwarf variety. सेमी ड्वार्फ रखा, ड्वार्फ नहीं रखा, ड्वार्फ रखेंगे तो क्या होगा, बिकॉज आवर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एनिमल हस्बेंड्री, तो हमारे जानवरों को तो कुछ खिलाना है ना. फिर देखिए दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ द वीट एंड राइस. नोबल यूरेट नॉर्मल ई बलोन, नाम याद रखना. ठीक है, एट द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज डेवलपमेंट इन मैक्सिको developed semi-dwarf varieties of wheat. In India, 1963, several varieties of the varieties such as Sonalika, Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt in India. So that is dramatically changed the productivity, है ना. और हमारा जो है within short span or dependence of the on the food from other countries, that is import of food, was drastically decreased. Semi-dwarf varieties of the rice, IR8, developed at International Rice Research Center Institute, that is IRRI in Philippines, and Taichung native जो हम ताइवान से लेकर के आए. ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ वर इंट्रोड्यूस इन 1966. लेटर बेटर इंडियन वैरायटीज इनको जया, रत्ना और पद्मा, ये सारे नाम दिए गए थे. दे वर डेवलप्ड इन इंडिया. शुगर केन का भी ऐसे ही है, सेक्रम बारबरी, ये जो है एक बहुत अच्छी वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है. ठीक है, एंड पुअर वैरायटी, क्योंकि यहाँ जो नॉर्थ का जो गन्ना होता है वो थिन होता है, एंड दोज जो साउथ में गए हैं, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. शुगर केन काफ़ी मोटा रहता है. मोटा शुगर केन मतलब स्टेम मोटा होगा तो क्या होगा, जूस विल बी मोर. सो देन दे आर क्रॉस्ड, बारबरी एंड ऑफिसिनेरम को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उनकी जो वैरायटी बनाई है, दैट हैज़ द बेटर यील्ड इवन इन द नॉर्थ एरिया. मिलेट्स जो होते हैं, जौ ज्वार बाजरा एंड ऑल, देयर आर ऑल्सो हाई यील्डिंग वेराइटीज आर बीन डेवलप्ड. अब ये है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट. ठीक है, मेथड क्या रहेगा, वही रहेगा. एक आप प्लांट चुन लीजिए, मदर प्लांट और फादर प्लांट, विच इज हैविंग ऑल गुड कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द डिजीज रेजिस्टेंट. एक आपको वाइल्ड प्लांट करेक्ट करना है, चूज करना है, विच हैज डिजीज रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द प्राइम कैरेक्टर प्रेजेंट इन इट, एंड अदर suitable characters are also there. They will be hybridized, where our aim is that if this plants the most of the character plus disease resistance of it will come in it.
हज़ारों सीड बनाएंगे, कोई 2, 5, 10 सीड जो है ऐसे बन जाएंगे विच विल हैव ऑल द गुड क्वालिटीज़। मोस्ट ऑफ द सीड्स विल बी रबिश, दे हैव टू बी डिस्कार्डेड। वो तो आप क्या है जानवरों को खिला दीजिए या कुछ और कर लीजिए जो भी आपको करना है। तो दिस इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड एंड वी हैव टू डू। एंड इन इंडिया द पूसा इज वन ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये बनते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी सीड्स बनाए हैं। देखिए वीट के लिए हिमगिरी विच इज़ रेजिस्टेंट टू द लीफ स्ट्राइप रस्ट एंड द हिल ब्लड, है ना, ये याद रखिएगा, है ना। दे विल आस्क कि भाई उसकी कौन सी वैरायटी है या ये वैरायटी किस काम आ रही है, किस प्लांट की है, क्या रेजिस्टेंट एंड ऑल। तो दीज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। पूसा राई, दैट इज द पूसा स्वर्णिम, करण राई सॉरी, इज़ अ वेराइटी ऑफ ब्रासिका, ब्रासिका कहते हैं मस्टर्ड को, है ना। तो ये हो गए, दैट इज़ वाइट राइस। कॉलीफ्लावर के लिए पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, है ना। दे आर वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा गोभी वोभी में, वाइट गोभी फ्लावर एंड उसमें ब्लैक हो, तो वो वैसे नहीं है, कचरा वचरा नहीं है। वो तो फार्मर विल टेल यू अरे सर ये तो कुछ लग गया है, कीड़ा लग गया, ये हाँ मिट्टी लग गई है, वो कुछ नहीं है। दे आर एक्चुअली फंगाई, ठीक है। तो दे हैव टू बी रेजिस्टेंट। तो ये वाली जो वेराइटी है वो रेजिस्टेंट है। काउपी, पूसा कोमल, है ना, ये बैक्टीरियल ब्लाइट से। और चिली, पूसा सदाबहार, क्या नाम रखा है, सदाबहार चिली, है ना। चिली मोजाइक वायरस एंड टबैको मोजाइक वायरस, लीफ कर्ल वगैरह से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन रीडिंग में पढ़ा देता हूँ, बाकी ये सब आप पढ़ लीजिए यहाँ से आता है। यही तरीके हम आगे लगाएंगे। बायोफोर्टिफिकेशन इज इम्प्रूव थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहले मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट इसमें है म्यूटेशन रीडिंग। इफ़ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई सेड we cannot produce a gene of our interest। जब मैं आपको बता रहा था कि इफ यू वांट कि ह्यूमन की स्किन का कलर ब्लू हो जाए तो वी कांट, बिकॉज वी हैव टू लुक ओनली फॉर द कैरेक्टर विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ द इंडिविजुअल, सम ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ इन वर्ल्ड ओवर वी नेवर गॉट एनी ह्यूमन हु हैज गॉट अ ब्लू स्किन। तो नया कैरेक्टर तो हम बना नहीं सकते, ठीक है। ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। वी नो दैट देर आर सम म्यूटेजेनिक एजेंट्स, एक्स रेज, गामा रेज और क्या कहते हैं और जो दूसरे हैं। इसके अलावा देर आर सम केमिकल्स, यूवी रेज एंड ऑल, है ना। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ इनको कंट्रोल एक्सपोज करेंगे टू द सीड्स। काफ़ी सारे सीड ले लिया मेज का, एक्सरे उसके ऊपर एक्सपोज डाला फॉर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, दैट दो सीड्स विल बी टेकन एंड ग्रोन इन द फील्ड, their seeds will be studied, ठीक है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग एंड दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में जो है मतलब वो फार्मर्स को करना यही होता है ना। मतलब वो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं दे आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी एंड नॉट टू मच ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा टाइम किया उन्होंने, उसके बाद सीड बना दी, तो लोग बाग बोते रहेंगे, हमको थोड़ी बोलना है एग्रीकल्चर ऑफिसर को, ठीक है। तो दे आर जस्ट कीप ऑन डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा है देखिए किस किस से हम उसको एक्सपोज करेंगे, सम ऑफ द केमिकल्स और गामा रेडिएशन, ठीक है। तो इनसे एक्सपोज करेंगे फॉर द डिफरेंट पीरियड एंड देन दे आर ग्रोन इन द फील्ड एंड दे आर स्टडीड वेदर देर इज एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ इवन वन करेक्टर। कोई भी एक भी नया करेक्टर आया, डिजायरेबल करेक्टर, then that plant will be selected, others all will be discarded. The plant which has got even one desirable character, new character which was not there, now it is a parent for the other plants, so this will be used for hybridization. So this is called mutation breeding. Mutation breeding is a very important thing. India में हमने कई सारी varieties बनाई हैं। देखिए several wild relatives of the different cultivatable species of the plants have been shown to have certain resistant characters ना। ये तो हटा दीजिए, ऊपर ही था शायद, ये रहा। इन इंडिया जो है हमने मूंग बीन रेजिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिलो वर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो ये याद रखना है, एक ही एग्जाम्पल दे रखा है ना। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं पेज 175 लास्ट पैराग्राफ, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। देखिए अगर आप हंगर इंडेक्स के बारे में पिछले दिनों में न्यूज़ में सुना है तो आपने देखा होगा कि इंडिया हैज़ गॉन रीच टू 84th पोजीशन इन हंगर इंडेक्स। मतलब हमसे नीचे कुल मिला के 20 कंट्रीज़ भी नहीं बची है दुनिया में। वो जो करीब 104 कंट्रीज़ या 107 कंट्रीज़ का सर्वे किया, उसके अंदर इंडिया इज़ रीच टू 84th पोजीशन।
You can imagine how much poverty is there. That is, they can't even get one time meal. Forget about electricity. सरकार तो कुछ भी कहेगी बैठ करके, वो तो कहेगी साहब हमने सबके घर में पानी पहुंचा दिया, हमने सबके घर में बिजली पहुंचा दी, हमने सबको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी है, ये दे दी, वो दे दी। द असलियत तो ये है, द रियलिटी इज दैट द पीपल आर नॉट गेटिंग वन मील इवन इन अ डे, and this is a very poor condition. Okay, now खाना तो खा सकता है चलिए यार, और ना टू टाइप्स ऑफ हंगर और देयर। एक वो हंगर है जिसके अंदर मिनिमम वन मील शुड बी, मतलब हम इंडिया की जैसे पुअर कंट्री के लिए बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ असल पुअर वो है जिसको कम से कम एक मील भी नहीं मिल रहा है एक दिन में। एंड उसके अलावा एक और हंगर दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये कौन सा है, हिडन हंगर। You can see this hidden hunger. Now what is meant by this hidden hunger? Hidden hunger वो है कि वो खाना तो खा रहा है, but he or she is not getting required nutrients. उसको कैल्शियम, उसको आयरन, उसको प्रोटीन, उसको अदर जिंक एंड ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज नॉट ऑब्टेन। देखिए क्या लिखा है, ये पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब फार ग्रेटर, ये 840 मिलियन तो छोटा अमाउंट है, वो नंबर है, उससे कहीं ज़्यादा है। फार ग्रेटर नंबर ऑफ 3 बिलियन पीपल, 6 बिलियन तो तक थी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, और 3 billion people suffer from micronutrient, protein, vitamin deficiency. This is called hunger, hidden hunger. ठीक है, because they cannot afford to buy fruits, vegetables, legumes, fish, meat, दाल, जिनसे भी प्रोटीन मिलते हैं। किनसे मिलता है प्रोटीन? फिश, मांस, मच्छी, अंडा, दूध, है ना। A very small amount of protein we get from wheat and maize. Mainly जो भी है प्रोटीन की डाइट, वो सब तो एक्सपेंसिव है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मिल्क इज़ एक्सपेंसिव, 55 रुपये पर केजी, ठीक है। फिश इज़ एक्सपेंसिव, 150-200 रुपये किलो से कोई फिश नहीं मिल रही है सस्ती। मीट इज़ एक्सपेंसिव अराउंड 500 रुपये पर केजी। चिकन इज़ एक्सपेंसिव अराउंड 200 रुपये पर केजी। एग इज़ एक्सपेंसिव, और अगर थोक में ला रहे हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, 170 रुपये पर ट्रे, दैट इज़ 38। अदरवाइज बाज़ार में जाके लाएंगे तो वी आर गेटिंग समवेयर अबाउट 10 रुपीज़ का 1 एग। तो प्रोटीन कहाँ मिल रहा है? बड़े बड़े नहीं खा पा रहे हैं, छोटे कहाँ से खाएंगे? एंड आयरन, एन एप्पल ए डे, अंग्रेज कह गए, कहाँ से लाएगा एप्पल? 100 रुपये किलो, 110, 140, 180 रुपये किलो हो रहा है। 180 रुपये के जी का एप्पल खाएगा टू गेट आयरन? इट इज़ आउट ऑफ रीच। हाँ, हुआ आयरन का गुड सोर्स पालक है, मेथी है, बैंगन है, जामुन है, देर आर मेनी अदर विच इज़ ऑल्सो नॉट ईजिली अवेलेबल टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंड देन विटामिन ए एंड आयोडीन एंड जिंक। Nowadays, lot of people are suffering from corona, and they all are given tablet. Vitamin C, vitamin and zinc. विटामिन सी टैबलेट से खाना पड़ रहा है, मतलब नींबू भी नहीं खरीद सकता आज की तारीख में देश का आदमी, एंड दे आर आस्क्ड टू टेक विटामिन सी। सो दिस इज़ अ वेरी पुअर स्टेट। तो अब क्या कर सकते हैं? तो इनका सबका सॉल्यूशन यहाँ पर है। द सॉल्यूशन इज बायोफोर्टिफिकेशन। What is biofortification? It is a practice of artificially introducing these of the substances into the staple diet. देखिए, even poorest of poor person will eat wheat or maize or millet. So if we can add iron content in it, or calcium, or vitamin A, or protein content, if we can increase, then even if eating chapati they will get these things. तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, in which by some method of hybridization or some other method by genetic engineering वगैरह से we have introduced, we have made a special varieties which is having higher content of calcium or iron or vitamins or zinc or any other type of things, protein and all. तो ये है
बायोफोर्टिफिकेशन. देखिए, ब्रीडिंग ऑफ द क्रॉप विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. Breeding to improve nutritional requirement is undertaken with the objective. Protein content and quality ज़्यादा होनी चाहिए. Oil content, oil seeds में ज़्यादा होना चाहिए. Vitamin content in the various type of fruits and vegetable, नहीं तो in the staple diet. And micronutrient. And a few examples are given here. That is in 2000 maize hybrids have been twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan has been developed compared to the existing maize hybrids. Wheat variety Atlas 66, याद रखिएगा आप, wheat variety Atlas 66 has high protein content which is being used as a donor to improve cultivable wheat. It has been possible to develop iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron in compared to the normal common varieties. Indian Agriculture Research Institute New Delhi has increased several vegetable crops with the higher vitamin and mineral content like vitamin A enriched carrots, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched beans. कौन कौन से बीन हैं? ब्रॉड बीन्स, लबलब, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पीस. आई थिंक यू नो ऑल दीज थिंग्स. ये क्या क्या हैं नाम? नहीं है तो गूगल आपके साथ में ही है, आपके मोबाइल पर सबसे पास में, तो वहाँ जाइए, आपको तस्वीर सहित मिल जाएंगे. तो फ्रेंच बीन, लबलब क्या होता है, फ्लैट बीन कौन से होते हैं, ये सब की फ़ोटो भी आपको दिख जाएगी. ओके, वन ऑफ द मेजर पोर्शन दैट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट. वी आर डन. अब बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, single cell protein. I said protein is the one of the biggest deficiency in our country. Malnutrition by protein is a very common thing in our children, small children. तो फिर क्या करेंगे उनका? तो प्रोटीन के लिए, और इसके अलावा आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स जो जाते हैं जिम विम में ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं, मेरे नहीं है देखने की जरूरत है. Okay, and then there are space program in which the people have to go to space for 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, जो भी है. अब वो तो छोटा सा तो स्पेस क्राफ्ट, देयर यू मे हैव ओनली दिस मच ऑफ स्पेस, स्टैंडिंग ही सो जाते हैं, है ना. एंड दे कांट ईट टू मच ऑफ फूड. अगर वो खाना है, दे कैन नॉट कैरी 10 kg राइस, और 10 kg राइस ले जाएंगे या 10 kg वीट ले जाएंगे, हाउ मेनी डेज इट विल गो, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विल बी डिस्कार्डिंग द वेस्ट. And how much water will be required. So all their foods are available in the form of tablets and capsules. So the tablets and capsules should be highly enriched, and they should have all the nutrients in the required quantity which these people are. उनको काफ़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, ठीक है. तो for that we require the new protein source. तो देखिए, conventional agriculture production of the cereal, pulses, vegetable, fruits etc. may not be able to meet the demand of the food at the rate at which they are produced. पहली बात तो उनको पैदा करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं. दूसरी बात, they require to be grown in the field. Third thing, they are very labor intensive thing. Fourth thing, we require to take lot of care and all. So we are shifting to the new method. देखिए, a shift from the grain to meat diet and also cereals. For the demand of cereal, it takes around 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg meat. अब अगर मैं बात करता हूँ कि 1 किलो गेहूँ 25 रुपये का आ रहा है, तो 10 kg गेहूँ का 250 रुपये, 250 रुपये का गेहूँ खिला करके तब द एनिमल विल बी बेयरिंग 1 kg मीट. आपने मुर्गी को 10 kg मीट खिलाया, तब कहिए कि 1 किलो वजन बढ़ा. 1 किलो मीट तो मुर्गी का तो 200 रुपये में ही बिक रहा है, 180 में बिक रहा होगा शायद, 160 में होगा शायद, एंड वीट तो आपने 250 रुपये का खिला दिया. तो ये तो कोई अच्छा वो सॉल्यूशन नहीं है ना. तो क्या करेंगे, ये फूड चेन के हिसाब से आपने पढ़ा ना, 10% लॉस के हिसाब से होता है. तो आप क्या करेंगे, मोर देन 25% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड malnutrition. वन ऑफ द ऑल्टरनेट इज सिंगल सेल प्रोटीन. नेम सिंगल सेल है, बट यू डोंट नो दैट दे आर ऑलवेज सिंगल सेल. कैसे हुआ था? स्पिरुलिना करके एक एल्गी थी, and this algae had a rich source of protein. It is
It is shown in some of the advertisement that 1 teaspoon of spirulina can provide the entire need of protein for an elephant for 1 day. मतलब वो इतना सारा प्रोटीन होता है उसका, एंड दैट प्रोटीन इज हाईली डाइजेस्टिबल एंड एब्जॉर्बेबल. हम जो खाते हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, बट वो एब्जॉर्ब नहीं होता होगा शायद, या डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा शायद, और इट मे नॉट बी ऑफ द ह्यूमन यूज्ड एमिनो एसिड और प्रोटीन. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज प्रॉब्लम पोजिंग प्रॉब्लम इन द डिफरेंट वेज. नाउ ये क्या है, माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन इन द इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन. माइक्रोब लाइक स्पिरुलिना कैन बी ग्रोन इजिली इन द मटीरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स. आलू की चिप्स, लेस, अंकल चिप्स, they are using lot of water to wash their potatoes, then cut them, slice them, again wash them, and then वो जो आ रहा है उसमें काफ़ी सारा starch है. And if this water is allowed to go into the water bodies, ponds and lakes and all, it will stink like anything, because that will promote the growth of algae and all, and fungi and all, and will start stinking. Otherwise also it will stink. तो एक वाइज मेथड हमने डेवलप करा, हमने उस पानी के अंदर स्पिरुलिना के एल्गी के स्पोर्स डाल दिए, एंड विद इन शॉर्ट टाइम द स्पिरुलिना स्टार्टेड ग्रोइंग एंड इट कवर्ड द एंटायर बॉडी. द स्पिरुलिना इज रिमूव्ड, दे आर प्रोसेस्ड, दे आर पाउडर्ड, एंड a rich source of protein is being come. So to production of large scale quantities या large quantities and can serve as the food rich in protein. अब प्रॉब्लम क्या है कि स्पिरुलिना डू नॉट हैव एनी गुड टेस्ट. तो हम क्या कर सकते हैं, वो पाउडर है. अब आप कोई सी भी सब्जी बनाओ, दाल बनाया, आलू की सब्जी बनाई, गोभी बनाई, उसमें इसका पाउडर थोड़ा सा डाल दो, बस हो गया आपका प्रोटीन रिक्वायर्ड. और वट एवर ड्रिंक यू आर हैविंग, टी बना रहे हैं तो उसके अंदर डाल दो, तो दिस विल फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ डे. इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन रिड्यूसेस द एनवायरमेंट पोल्यूशन. तो इसके फायदे क्या हुआ, पहली बात, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फील्ड, वी आर नॉट टू पुट दैट मच ऑफ लेबर, वी need not to do all those type of practices which were the conventional practices in which the agriculture, sowing, looking after the plant, irrigation, pesticide, fertilizer, this and that, all this की कोई ज़रूरत नहीं है. You have to choose a water body, especially those from those places where the dairy water is coming, where वहाँ पर काफ़ी सारे दूध वगैरह के टैंक होते हैं, तो that also get some organic waste in it, or potato processing industries, or any other processing industry, sugar plants, where the sugar juices have been extracted, and after that the waste is there, that is dipped in the water. It has got lot of carbohydrates, sugar. So these can be a good source where this type of algae can be grown. ठीक है, and they will give result in a very short span of time. ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, very important. It has been calculated that 250 kg cow produces 200 gram protein per day. एक 250 किलो की गाय एक दिन में मान लीजिए 10 किलो दूध देती है, तो 1 kg मिल्क के अंदर आपको मतलब यू आर नॉट गेटिंग इन मोर देन 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ठीक है, एट द सेम पीरियड 250 grams of micro organism like Methylophilus or Methylotrophus, because of its high growth rate, biomass production and growth, can expected to produce some about 25 tons of protein. बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट इसको आप देख लेना. आई थिंक देर इज़ सम न्यूमेरिक मिस्टेक इन दिस, दैट इन द न्यू बुक्स और इन द दिस थिंग इट इज़ चेंज, है ना, सप्लीमेंट में भी थोड़ा सा चेंज था इसमें. अब ये सब जो थे, ये तो थे, देखिए क्या है, मिथाइलोट्रोपस कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइलस कहते हैं, और स्पिरुलिना कहते हैं. दे ऑल वर सिंगल सेल. But there are number of other examples like mushroom. ये देखा, mushrooms are eaten by many people in the large scale. Mushrooms are cultured. कहाँ पे कल्चर करेंगे mushroom? Where the sawdust is there. wood का saw बनता है, वो powder. Mushroom can be easily grown. Where hay stalk is there. काफ़ी सारे सूखी घास वगैरह इकट्ठी कर लेते, उसमें mushroom बड़ी आसानी से grow. तो mushroom can be grown in these type of things, है ना. And mushroom is a good source of protein. And it is a highly appreciated delicacy in most of the 5-star and 3-star and 2-star and other hotels, and even मतलब और आपके घरों में भी. तो you know that if you eat mushroom, मैंने तो कल ही खाया था, तो you know that how tasty it is and mushroom is multicellular. ठीक है, तो it is not unicellular, it is single cell नहीं है. ठीक है, अब है टिश्यू कल्चर.
पढ़ा देता हूँ टिश्यू कल्चर, छोटा सा ही है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई गॉट सम टाइम इज देयर माई मोबाइल ऑल्सो फॉर रिकॉर्डिंग। तो टिश्यू कल्चर क्या है? आप बाजार गए, आप फ्रूट लेके आए, एप्पल, वेरी टेस्टी, you never tasted such sweet and good apple in your life. Or your mother buys carrot to make halwa, and the carrot is extremely tasty. Or you buy any fruit which is extremely juicy and sweet and all, then you may feel at once, अरे यार इसका पेड़ मेरे घर में होता कितना मजा आता। सपोज आई कुड हैव ग्रोन दिस टाइप ऑफ ना, उसकी सीड से आप बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है, इट इज नो गारंटी दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, बिकॉज सीड इज प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू वेराइटी। ये प्लांट का अंडा होगा, उस प्लांट का पॉलन आया होगा, एंड दैट्स क्वालिटी में बी पुअर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, वी वांट टू हैव एग्जैक्ट दैट टाइप ऑफ टेस्ट और एग्जैक्ट दैट टाइप ऑफ कलर और juice or etc etc. Then we have to come across this practice, tissue culture. And the tissue culture exploits a property of the plant that is called totipotency. Totipotency states that any living cell of a plant can give rise a whole new plant. From any one cell you can get the entire plant. There is a property, mitosis वगैरह से. You have to just provide a suitable condition. तो अभी क्या करते हैं, ये हम गाजर लेकर आए बाजार से. The carrot, very tasty. So what we did, we have taken some of the cells and we have cultured in the laboratory. These cells are cut and placed into this. Within no time and by all the required conditions. Now what are the required conditions? Suitable temperature, sterile conditions, it should be free from the microbes. Then the hormones like auxins and cytokinins or gibberellins, whatever type of things are to be given. Some of the vitamins and minerals are given. So then this will grow in a short period of time into a bunch of the cell. That bunch of the cell is now known as callus. It is known as callus. Now the callus, if you allow, it will grow into a new plant. But if you want more number of plants, just remove the callus and cut it into the smaller pieces. Okay? Then again repeat the same process until unless you get the desired number of callus. Then you allow them to grow. So when they will be allowed to grow, they will produce a new plant. Those plants are first placed into the restricted condition, with the suitable temperature, moisture, mineral content and water and all, सब कुछ उसको देंगे laboratory के अंदर, ठीक है, and then once the plant grows and attains